Good morning, all of you, and welcome back to online classes of Mahanavata. Before starting the topic, I would like to say that in the previous video, I have already told that if you have any problem, you can ask me. Because recently I come to know that many of you are not watching video properly, or maybe there is a technical problem. That's why you are unable to watching the videos. So if you have any problem regarding the videos, you can ask me. Without any hesitation, ask me, sir, have you uploaded video or not? Directly on WhatsApp or directly on dashboard. At least you should ask me, sir, have you uploaded video today or not? Then I will answer you. Okay, let's start. Chola literature. Chola rulers were the patrons of education and literature. The temples of the Mahasabhas of village were the centers of education. Tamil and Sanskrit languages were in use. चोला रूलर्स की बात करें, वो एजुकेशन और लिटरेचर के एक तरह से पैट्रन थे. पैट्रन मीन्स संरक्षक, जिसको संरक्षण दिया जाता था. तमिल और संस्कृत लैंग्वेजेस जो थे उसका यूज ज़्यादा होता था. तमिल लैंग्वेज इंजॉयड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. मतलब हम कह सकते हैं कि चोला रूलर जो थे उनकी जो स्टेट लैंग्वेज जो थी वो तमिल थी. कॉम्प्रिहेंसिव बुक नेम्ड कंबन कंपोज्ड द टेक्स्ट राम अवतार वाज पब्लिश्ड. एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक कंबन के द्वारा जो लिखी गई थी उसको राम अवतार जो थे उन्होंने पब्लिश किया. कंबन कुलोत्तंग थर्ड वाज वन ऑफ द कंट्रीज courtiers of King Darbar, and his period of activities is known as the golden period of Tamil literature. कंबन कुलोत्तंग थर्ड जो कि किंग दरबार में एक तरह से कोर्टियर था, और उसके जो टाइम पीरियड जो था वो तमिल लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है. जयंगदर publish a book named Kalitung Parni. During his period, he was the chief royal poet of Chola. Periyan Puranam or Periyan Puranam and the Pulagindi written by the Nulamembo and the Sheki Kallar were famous literary books. Besides them, the famous literary creations were the Tirutonda Puranam, Nandi written by the Priya Puranam, Ramanuja Nurdai by the Amudnar, Shiva Koshindi Mani by the Tirukadevar, etc. religious books, and the Viro Solayam by Buddhamitra, Nannar by Pabandit. Grammar book were famous publications in Jain literary works, Jivak Chinta Mani and Buddha literature. Kundal Keshi are also important publications. Ramanuj, Yamunacharya and the Rigveda translator Venkat Mahadev etc. added Sanskrit literary works. The important achievement of the Chola dynasty is their system of local self-government. चोला डायनेस्टी की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट उनका अचीवमेंट जो था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में था. नेवल फोर्स, तमिल लिटरेरी वर्क्स एंड ह्यूज टेम्पल्स. दैट इज वाई दिस पीरियड हैड इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द इंडियन हिस्ट्री. राजतरंगिणी एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. राजतरंगिणी जो कि एक फेमस बुक है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के डिस्क्राइब किया गया है, जिसको कल्हण के द्वारा लिखा गया है. तो आइए उसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं. कल्हण वाज द सन ऑफ चंपक हु वाज द महामात्य ऑफ किंग हर्षदेव. कल्हण जो कि महामात्य का बेटा था, चंपक नाम था जिसका, जो हर्षदेव के वहाँ पर महामात्य था. ऑफ लोहार डायनेस्टी फ्रॉम कश्मीर. ही वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ कनक, द लर्न स्कॉलर ऑफ म्यूजिक कश्मीर. कल्हण gave rise to his famous book राजतरंगिणी during the period of last ruler जय सिंह of लाहौर डायनेस्टी. या लाहौर नहीं, ये लोहार डायनेस्टी. एक्चुअल में लाहौर गलत लिखा है, लोहार डायनेस्टी, तो आपको इसको लोहार ही पढ़ना है. तो कल्हण जो था उसने अपनी जो बुक लिखी थी राजतरंगिणी, वो लोहार डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जय सिंह, उसके टाइम पीरियड में लिखी थी. इट वाज रिटन ड्यूरिंग 1147 AD to 1149 AD. द बुक on his history of Kashmir, description about the Kashmir beginning from the Mahabharat period to his present. मतलब कश्मीर का जो इतिहास बताया गया है, इस कल्हण के द्वारा जो राजतरंगी में जो हिस्ट्री बताई गई है वो महाभारत पीरियड से लगाकर जब तक जयसिंह का जो टाइम पीरियड चल रहा था लोहार डायनेस्टी में, उसके बीच की जो पूरी हिस्ट्री जो है उसमें डिस्क्राइब की गई है. His famous book was considered as the
फर्स्ट हिस्ट्री बुक इन द सीरीज ऑफ बुक ऑन द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब हिस्ट्री इंडिया की जो हिस्ट्री के ऊपर जो बुक लिखी गई उसमें उसकी बुक जो है उसको सबसे फेमस माना गया और फर्स्ट माना गया। देर आर 8 तरंग एंड इन ऑल 7,826 श्लोक्स इन संस्कृत लैंग्वेज। मतलब ये कलहण के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है वो संस्कृत में है। उसमें 8 तरंग और लगभग 7,826 उसके अंदर श्लोक हैं। इन द फर्स्ट 3 तरंग्स there is a description of Kashmir. There is a detailed description about the generation in chronological order of oral customs of Kashmir. स्टार्ट की जो तरंग है उसमें कश्मीर से रिलेटेड जो जितने भी रूलर थे उनकी जनरेशन और उनके जो ऑरल कस्टम जो थे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ही हैज़ यूज्ड टू एपिक बेस्ड सोर्सेज लेजेंड एंड द मिथ फॉर द recognizing the events of his period. Connection of kings has been established with the heroes of Ramayana and the Mahabharata era. In the 4th to 6th tarang of Rasarangani, there is a historical description of the Karkotis and the Utpanna dynasty. Only last 2 tarangs are based on the personal awareness and the studies of different treatises by Kalhana. His knowledge about the said period certainly reached the historic description and the other Buddha sources. उसके द्वारा ये जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई है वो उसकी खुद की नॉलेज, बुद्धा लिटरेचर से उसने जो पढ़ा और ऑरली उसने जो कुछ भी सुना वो सारी चीज़ें उसने उसमें इंक्लूड की है। इन दिस इट्स 7th and 8th तरंग देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लोहार फैमिली. कलहण हैड impartially described the virtues of every king. Apart from the political, other topic about noble deeds and the moral education have also been highlighted in different chapters of his book. Kalhana used Sanskrit language in the Rashtarangani and it is the first important literary volume where historical description are available. Kalhan ने ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में. The meaning of the word Rashtarangani is the river of kings. राज का मतलब होता है राजा और तरंगणी का मतलब होता है नदी. मतलब रिवर ऑफ द किंग इसका लिटरेरी मीनिंग है. किंग्स हिस्ट्री और फ्लो ऑफ टाइम, इट इज इन द पोएटिक फॉर्म. Kalhan had given a new direction to the subject history by the transforming its subject of matter as Indian history and had touched the depth of human emotions and nature with broad outlook for one nation. Rashtarangani mentioned that first of all सहदेव द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ पांडवास. राष्ट्ररंगी में सबसे पहले जो मेंशन किया गया है वो सहदेव के बारे में लिखा गया है. सहदेव जो कि पांडवों के जो सबसे छोटे भाई जो थे उनके बारे में लिखा गया है. पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सबसे लास्ट जो था वो सहदेव. तो सहदेव के बारे में इसमें लिखा गया है. एस्टेब्लिश हिज किंगडम इन कश्मीर एंड एट दैट पीरियड वैदिक धर्म वाज इन प्रैक्टिस. देयर आफ्टर देयर emerged Buddhism in 273 before Christ. Rashtarangani is the fearless and the impartial literary creation in Indian history. मतलब इसमें किसी तरह का किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की है. जो ओरिजिनलिटी जो उसको पता चली या उसको जो उसके बारे में पता था उसने उसमें लिखा. Kalhan himself told that a language of a true historian should be free from the controversial remarks, and then only can one deserve appreciation. The composition of Rashtarangani was brought into existence with an aim and object of acquainting the reader about the bygone kings, the provide matter for readers, mental recreation and the getting lessons from history and the events of and providing dynastic details of different generation of king. After the death of Harsh, there sprang up a period of civil war and struggle for the kingship. It was the period of uncertainty and the unsuccessful organization in the then society. मतलब हर्ष के बाद में इंडियन सोसाइटी जो थी वो पूरी तरह से पॉलिटिकली बिखर गई थी. अलग अलग प्रकार के जो लोकल रूलर जो थे उनकी अपनी अलग अलग टेरिटरिया थी. अनसर्टेनिटी, अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए उनके द्वारा. There emerged such elements which compelled Kalhan for history. He wanted to express his views about the mundane living style and the mortality of the physical glamorous. It was his keen desire that people should inspire and learn lesson from the past. ये कलहण चाहता था कि पास्ट के रूलर ने या पास्ट के लोगों ने जो मिस्टेक की
उन मिस्टेक के बारे में, उनकी जो गलतियां जी, उनकी जो कमियां जो थी, उनके बारे में लोगों को पता चले और लोग जो है वो उनके पास्ट से सीखे. गेटिंग लेसन फ्रॉम हिस्ट्री ही हैड टू स्टडी द सर्कमटेंसेस एंड द इवेंट्स एंड एनालिसिस देम. दिस एनालिसिस मेक्स राजतरंगिणी एज अ distinguished collection of Indian history. Rajtarangini of Kalhana is narration about the activities of every brave person and highlights the then society when Kalhana lived. His family was in close proximity to the political power, thus he could get information about the history of the region. उसका फैमिली जो बैकग्राउंड जो था वह रूलर से बिल्कुल क्लोज था, मतलब उसके परिवार के लोग पहले से ही किंग फैमिली और रॉयल फैमिली के साथ में रहते थे, जिसकी वजह से उसको कई सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती थी. ही डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट. दिस इज द रीजन दैट इज कंपोजिशन वाज अबाउ द लेवल ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ एनी किंग. मतलब मोस्ट ऑफ जो राइटर या जो पोइट जो थे वो क्या करते थे, उनको वो मोस्ट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन जो थी वो किंग या रूलर की अप्रिशिएशन में लिखते थे, ताकि उनको बहुत सारे पैसा मिले या उनको कोई अवार्ड मिले. लेकिन कल्हण जो था उसको किसी तरह का कोई स्टेट अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था. उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो रियलिस्टिक्स में दी थी उसने. दिस इज रीजन दैट द कंपोजिशन वाज अबाउट द लेवल ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ एनी किंग. ही सिलेक्टेड पोएट्री एज अ मीडियम फॉर डिस्क्रिप्शन. ही कुड एसोसिएटेड द हिस्टोरिकल ट्रूथ विद द फ्लेवरी थिंग इन हिज क्रिएशन. ही असर्टेड थ्रू क्रिएशन दैट द poet must be impartial.